Hello everyone, I welcome you all once again to my channel. The need of this video is very important right now because my Instagram DMs have been filled with BTR, BTR, BTR as a stuff. I do not want this freaking environment in the very last few months of your examination. It's just like 2 months to NICET and maybe merely 4 to 5 months to NEET PG. I do not want this kind of confusion at the very last moment. The last 6 months are very important. You shouldn't mess your stuffs, your sources, your everything. And this is that one portion which is literally taking so much of attention. I don't know why. And that's why I wanted to really make something clear about the stuff. So let's go on. The first important thing is BTR so much of necessary that you can't crack NEET PG or NICET without this particular thing. No, it's not. I mean, I'm the best example in front of you. यार मैंने BTR नहीं यूज़ किया है. मुझे भी बहुत डर लगता था जब तुम्हारे अगल बगल के लोग must be using BTR and it seems very, structured and concise, and you might feel like, oh, people are doing this, people are doing that, I should use that, I might be missing out on something. And me being already getting good marks in my GTs as well, still I had a fear of this thing. So people who might not be getting good scores, I can really understand their part of thinking. And also those people जिनके अच्छे आते हैं ना, वो भी are in fear of कि maybe I might miss out on something that I should cover from BTR, and I should look at what BTR is all about. But please do not make yourself dragged into the shackles which is unnecessarily created. I do not want you all कि अगर तुमने कहीं और सोर्स से पढ़ा है एंड तुम सडनली इन द लास्ट 2 months और 3 months और 4 months ऑफ द एग्जामिनेशन तुम ये BTR स्टफ में फंस रहे हो. प्लीज just stick to your source. You do not have to do BTR. I got All India rank 16 in NICET, All India rank 25 in NEET PG. मैंने दोनों ही एग्जामिनेशंस विदाउट BTR दिए हैं एंड आई कुड क्रैक बोथ द एग्जामिनेशंस वेरी एफिशिएंटली. सो यू ऑल्सो कैन डू इट. एंड सेकेंडली, who are the proper candidates to use BTR? सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें BTR से क्या पता चलता है. वॉट इज़ एग्जैक्टली BTR टू यू? BTR इज़ जस्ट अ कंसाइज्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो तुम्हें लास्ट के 10 दिन में यूज़ करना है. Eventually, if you've seen ZMM's video, I guess one of the YouTubers had a conversation with her and had even posted up that video on his channel where she was actually describing what the content is actually about. It is actually a concised source. It is not something enough. It has been curated out to actually look into the concepts, the important things at the very last 10 days. देखो बहुत सारे लोग होते हैं जो नोट्स को नहीं कंसाइज कर पाते एंड इट एक्चुअली गिव्स देम अ वे टू क्योर इट आउट कि कौन सा इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द एग्जामिनेशन, बी इट नीट PG, बी इट INICET. हमको क्या कब पढ़ना है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता. उनके लिए BTR इज़ रियली गुड एंड आई एडमायर दैट थिंग बिकॉज मैंने BTR को सिर्फ देखा हुआ है फॉर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट क्या टॉपिक तुम्हें कवर करना है, बिकॉज द सिलेबस इज़ वास्ट and you need to cure it out what is important and what is not important. Now, the third thing that I frequently encounter recently, yesterday night, I only had one of the DMs where there was one of the students who told कि मैम मैं RR and BTR दोनों साथ में कर रहा हूँ, is it sufficient? पहली चीज़, I seriously do not advise you to do RR and BTR simultaneously. फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं मैरो यूज़र थी, मैंने मैरो के RR वीडियोज़ किए हुए थे और फिर तुम BTR करो, इट इज़ सिमिलर यार. मतलब जो RR वीडियोज़ तुम दूसरे प्लेटफॉर्म से कर रहे हो, उन्होंने भी PYQs एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक से बना के मिला के वो बनाया है. एंड BTR इज़ एग्जैक्टली दैट. जैसे मैरो के RR वीडियोज़ थोड़े तुम्हें वेग लग सकते हैं, BTR बहुत ही टैबुलेटेड, स्ट्रक्चर्ड, निमोनिक वाइज होगा. ठीक है, तो तुम्हें ऐसा लग सकता है कि हाँ यार इसमें ज़्यादा अच्छा दिया है, बट ऐसे भी हो सकता है कि बहुत से कंटेंट्स BTR में नहीं है, बहुत सी चीज़ें यहाँ पे हैं, तुम्हारी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी हो, और बहुत सी चीज़ें यहाँ पे नहीं है जो यहाँ पे. वो तो तुम किसी भी प्लेटफॉर्म में ऐसा फील करोगे, बी इट तुम डांस में हो, तुम मैरो में हो, तुम सेरेबेलम में हो, तुम प्रेप लैडर में हो. ये इंटर प्लेटफॉर्म वाला द लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन यू विल फील इट एट एनी पॉइंट इन द टाइम. बी इट मैरो के तो लोग कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन इतना वास्ट है,
फिर भी बीइंग अ मैरो यूज़र, अगर मैं डांस की डीवीडी अगर 1-2 मैंने देख ली अपने दोस्तों के साथ या फिर उन्होंने मुझे कुछ पढ़ा दिया, आई वुड बी लाइक कि यार ये सब तो हमको पढ़ाया ही नहीं है। इट इज़ वेरी कॉमन टू हैपन। सो दैट डज़न्ट मीन कि मैं 4 जगह से एक ही चीज़ें पढ़ूँगी। स्टिक टू वन सोर्स। एंड लास्ट 2, 4, 5 महीने में तो ये वाली गलती करनी ही नहीं है। ये गलती बहुत सारे बच्चे करके बैठ चुके हैं, एंड आई रियली वांट यू ऑल कि तुम इस मेस में ना फंसो। प्लीज़ stick to the RR source that you're already using it. Do not change it to BTR at this very crucial time. BTR is really good, but it is equivalent. You don't have to switch your source completely to have that stuff. So now the fourth question that comes into the mind is BTR तो यूज़ करना भी चाहिए या नहीं, और अगर यूज़ करना है तो कौन यूज़ कर सकता है। पहली चीज़, जैसे अगर मैं हूँ, मेरी बेसिक्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। अगर मैं बीटीआर पे स्विच होती इन द लास्ट 1 मंथ में भी ना, तो भी मैं बीटीआर समझ जाती, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो एक ही है, बस तरीका अलग बता रखा है उन्होंने। तो जिनके बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ऑलरेडी, दे हैव अ गुड एज, वो बीटीआर यूज़ कर सकते हो। एंड इतने अच्छे हैं कि तुम लास्ट 1 to 2 मंथ्स में यूज़ करो, गो ऑन। दूसरा सेट ऑफ पीपल आर दोज जिन्होंने पढ़ाई करी ही नहीं है। दे हैड अ लेट रियलाइजेशन कि ठीक है चलो, इन द लास्ट 6 मंथ्स दे रियलाइज कि नाउ हैव टू डू। आई थिंक इन पॉपुलेशन जो होती है ना, उनके लिए आर पर बीटीआर इज़ अ वेरी गुड स्टाफ, बिकॉज दैट इज़ काइंड ऑफ एक्स्ट्रापोलेटिंग, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ से, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन यहाँ से, और दोनों ही कंसाइज्ड सोर्स होंगे, तो तुम्हें मैक्सिमम कवरेज ऑफ PYQs एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स विदाउट मिसिंग आउट एनी हो जाएगा। तो जो लोग ये लास्ट 6 मंथ्स में थोड़े से श्योर हुए हैं कि चलो हमें एग्जामिनेशन थोड़ा सीरियसली देना है, आई वुड सजेस्ट कि ठीक है तुम ये RR BTR वाला कॉम्बिनेशन कर सकते हो। बट दोज पीपल जिन्होंने ऑलरेडी मेन वीडियोज़ कर रखे हैं, तुमने RR वीडियोज़ कर रखे हैं जैसे मैं, तो फिर बीटीआर पे नहीं स्विच होने का। देखो अननेसेसरी हाइप है इस चीज़ का। इट इज़ वेरी गुड, आई डू नॉट डिनाई बाय इट, बट इट इज़ नॉट समथिंग विदाउट विच यू कैन नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन। आई हैव क्रैक्ड इट, माई फ्रेंड्स हैव क्रैक्ड इट। मेरे भी दोस्त हैं जिनको बीटीआर के बारे में अता पता ही नहीं था। हमको लास्ट 4-5 महीने में बीटीआर के बारे में पता चला था कि बीटीआर जैसी कोई चीज़ होती है जो लोग यूज़ करते हैं। यूज़ इट एज अ वेरी स्ट्रेट अवे, वेरी कंसाइज, वेरी टैबुलेटेड निमोनिक वाला स्ट्रक्चर्ड सोर्स। बट हम में से किसी ने ये नहीं ट्राई किया, बिकॉज वी न्यू वन थिंग दैट वॉज टोल्ड बाई एवरी टीचर, बी इट एनी प्लेटफॉर्म यू आर इन, दैट नेवर चेंज योर सोर्स। हर प्लेटफॉर्म पे अच्छे टीचर्स बैठे हुए हैं, हर प्लेटफॉर्म को पता है क्या PYQs पूछ रहे हैं, क्या ट्रेंड्स चल रही हैं। एंड तुम मुझ पर तो भरोसा कर ही सकते हो, बिकॉज मैंने अभी रिसेंट ये एग्जामिनेशंस दी हैं, तो मुझे पता है कि हाउ इज़ द ट्रेंड गोइंग। एंड येस, the RR videos, the main videos that you do, they are covering the amount of information that you need to crack this examinations. बिना BTR के तुम INI CET क्रैक नहीं कर सकते, बिना BTR के तुम NEET PG क्रैक नहीं कर सकते। I do get this kind of DMs in my Instagram. This is not true. I think I have typed it maybe 50 times to the students who are, जिनके DMs आते हैं मुझे Instagram पे। तो I really wanted to अबॉलिश दिस फियर कि बिना बीटीआर के हम रैंक नहीं ला सकते। प्लीज़, अगर तुमने अच्छे से जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़े हो, वहाँ से अच्छे से पढ़े हो, तुमने वहाँ की RR वीडियोज़ की है, खुद से PYQs बनाई है, या खुद से कंसाइज नोट्स बनाए हैं, दैट इज़ तो बेस्ट, बिकॉज यू नो कि तुमको क्या नहीं पता है। कुछ टेबल्स होते हैं जो तुम्हें पता नहीं क्यों याद होते हैं, जैसे जीन प्रोफाइलिंग, ब्रेस्ट कैंसर के टेबल्स होते थे, TNM स्टेजिंग है, वो मुझे याद ही रहता था। ऐसे तुम्हें भी बहुत सारी चीज़ होंगी जो याद ही रहेंगी, वो तुम्हें वापस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पर अब कुछ चीज़ें जो तुम्हें नहीं याद है, जैसे कोई बायोकेम का टेबल है, कोई म्यूकोपॉलीसेक्रेडोसिस है, कोई स्फिंगोलिपिडोसिस है, वो तुम्हें नहीं याद है, तो दैट इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ योर कंसाइज नोट्स, दैट इज़ गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द लास्ट 10 days, दैट इज़ गोइंग टू बी योर BTR। ये जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ये तुम्हारे हिसाब से क्यूरेट आउट होके वो लास्ट 10 डेज़ का इन्फॉर्मेशन बनना चाहिए जो तुम्हें याद नहीं रहता। BTR तो ज़ैनब मैम ने क्रिएट कर दिया कि उनके हिसाब से व्हाट इज़ द मोस्ट वॉलेटाइल स्टफ, बट इफ़ यू क्रिएट इट इन योर ओन वे कि तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे वॉलेटाइल स्टफ्स क्या है, दैट इज़ द बेस्ट फॉर यू, राइट। एंड आई डू नॉट
आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमीन द स्टफ, इट इज़ रियली गुड। मतलब अगर तुम्हें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, पता है बहुत बार ऐसा हो जाता है बच्चों को कि बिल्कुल पता नहीं चल रहा होता है कि आईएमपी क्या है, सारे क्वेश्चंस तो वही लग रहे हैं, सारे टॉपिक्स हमको इंपॉर्टेंट ही लग रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं चल रहा हमको क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। वहाँ इट प्लेज अ वेरी क्रुशियल रोल। लाइक तुम्हारे पास टॉपिक्स होंगे, येस येस दिस आर द टॉपिक्स, ये पूछे गए हैं एंड आई हैव टू फोकस ऑन दैम। बिकॉज मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं इवेंचुअली अभी जो कर रहे हैं एंड दे टेंड टू आस्क मी कि यार हमने पी वाई क्यूज तो सॉल्व कर लिया, वी स्टिल कुडेंट फिगर आउट कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है। सब ऐसे लगता है कि सब इंपॉर्टेंट ही है पी वाई क्यूज, या फिर तुम कस्टम मॉड्यूल सॉल्व करो तो तुम्हें ऐसे ही लग रहा होगा कि एवरी थिंग इज इंपॉर्टेंट, लाइक एवरी थिंग आई हैव टू कवर। देयर इट कम्स कि तुम बीटीआर को एज अन एडिटिव यूज़ कर सकते हो कि या देर आस्किंग दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज बीटीआर इज हैज़ बिन स्ट्रक्चर दैट वे कि तुम्हें खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई होंगी। सो या, तो प्लीज़ मेरी एडवाइस मानो, अगर तुमने ढंग से किया है डो नॉट स्विच टू बी टी आर, यू डोंट नीड इट। आई डिड नॉट यूज़ इट फ्रैंकली। तुम्हें भरोसा नहीं होगा, सच बोल रही हूँ, मैंने नहीं यूज़ किया है बी टी आर। तुम इंटरव्यूज़ में बहुत सारे टॉपर्स की सुनोगे कि हमने सिर्फ बी टी आर करके गॉट अंडर 1000 रैंक। प्लीज़ डो नॉट बिलीव सच ब्लंडर स्टफ्स। उन्होंने ना उनके एम बी बी एस के टाइम में बेसिक्स बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर रखे होंगे और फिर बी टी आर यूज़ किया होगा, तो उनके तो ऑब्वियसली अच्छे ही आएंगे ना। जब तुमने मेन टेक्स्ट बुक से पढ़ा है एंड देन यू यूज़ द कंसाइज सोर्सेज, ऑटोमेटिकली इज फ्लोइंग इन अ गुड मैनर, राइट? नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमने अगर बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिया एमबीबीएस के वक्त, तो लेट्स स्विच टू मेन वीडियोस। उन्हीं उसी प्लेटफॉर्म के फिर आर वीडियोस करो, पी वाई क्यूज ढंग से करो, बेस्ट है। यू डू नॉट नीड बी टी आर लाइक स्टफ्स। एंड जो भी अपकमिंग लोग हैं जिनकी नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर या फर्दर ईयर्स में तुम्हारी जिनकी एग्जामिनेशन होने वाली है, अगर तुम्हें बी टी आर करना ही है यूज़, तो मेक श्योर कि तुम 6 to 7 months बिफोर द एग्जामिनेशन इस चीज़ को अपनाओ। बी टी आर का तरीका देखो कैसे पढ़ाते हैं, बिकॉज हम मेन वीडियोज़ किसी और टीचर से दिख रहे हैं, उनकी डिलीवरी स्टफ से इक्वेंट हो जाते हैं, फिर सडनली बी टी आर में जाओगे ना, वहाँ सिर्फ निमोनिक 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 निमोनिक, तुम ना रियली बोल रहे हो, ऐसे डिस्टर्ब हो जाओगे। क्योंकि मैंने मेगा बी टी आर जब ट्राई किया था, मेरी आईनी सेट से 2 दिन पहले आई गेस दे हैड मेगा बी टी आर सेशंस, तो दे हैड लॉट ऑफ निमोनिक्स एंड आई वाज सो कंफ्यूज दैट आई जस्ट स्टॉप्ड इन बिटवीन कि नहीं, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, आई कैन नॉट डू इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। So that is exactly that I'm trying to deliver to you as well. If looking forward for BTR for the upcoming examinations next year or next to next year and then the further years, please use BTR at least 6 to 7 months prior. Add the things that is written in your main notes which is not there in the BTR. Try to make it much concised after adding your stuffs as well, because बहुत ज़्यादा भी ऐड कर दोगे ना तो इट ऑल्सो बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू स्टडी। इससे अच्छा बेटर रहने दो, लीव इट एज अ रॉ सोर्स। एक नई बुक बनाओ, उसमें जो भी तुम्हें एक्स्ट्रा चीज़ें तुम्हारी नोट से लग रही है वो लिख दो एंड मेक्स इट कंप्लीट, देन यू यूज़ बी टी आर। बट डो नॉट फॉल इन टू दिस ट्रैप ऑफ लास्ट 1 month यूसेज ऑफ बी टी आर। ये लास्ट पता नहीं 3 month के प्लान्स होते हैं, मिशन प्लान्स, दे आर रियली गुड, दे आर रियली गुड इन द पर्सपेक्टिव लाइक टेस्ट एंड डिस्कशन के जो सेशंस होते हैं, दे आर रियली गुड। अगर तुम्हारी ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बनी हुई है तो तुम एप्लीकेशन सीखते जाओगे ग्रेजुअली। बट अगर तुम पहली बार यूज़ कर रहे हो, तुम्हारे बेसिक्स उतने स्ट्रांग नहीं है, खाली बी टी आर करके सोच रहे हो कि एग्जामिनेशन में फोड़ दोगे, तो ऐसा नहीं होता। यू नीड टू हैव योर बेसिक स्ट्रांग रियली इन द करेंट टाइम ट्रेंड। जो पैटर्न पूछी जाती है उस हिसाब से यू रियली हैड टू बी very thorough with your basics, and then you can ace the examination even without BTR. So BTR is a really good source, really structured, everything is very good, very perfect, but it is not something really crucial जिसके बिना you cannot crack this examination. I am the best example, so please 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 ये fear अपने अंदर से निकाल दो कि बिना BTR के नहीं हो सकता है बहुत अच्छी रैंक्स आती है। I am a 2-digit ranker, I have got it without using BTR, so I think I am the best example to suffice you that BTR isn't that worth enough to get good ranks. Take care and bye bye.